Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a series of informative videos tailored for CBSE Class X students on the topic of matter and our surroundings. These videos aim to enhance students' understanding of the scientific concepts related to matter and its properties, covering essential aspects such as states of matter, physical and chemical changes, and the behavior of particles. The videos provide a comprehensive explanation of the subject matter. The engaging visual content and simplified explanations make it easier for students to grasp complex ideas. By delving into the microscopic world of atoms and molecules, Ignited Minds Tutorials help students understand the behavior of different substances and their interconversion. These videos also shed light on the various factors affecting the states of matter, such as temperature and pressure. With matter and our surroundings being an important topic in the CBSE Class X science curriculum, Ignited Minds Tutorials is committed to equipping students with the knowledge and skills needed for academic excellence. These videos serve as a valuable resource for students to enhance their understanding, reinforce concepts, and consolidate their learning. By providing comprehensive and accessible educational content, Ignited Minds Tutorials is empowering students to excel in their academic pursuits and harness the power of knowledge. With their dedication to delivering quality education, they continue to ignite young minds, guiding them towards success in the realm of science and beyond. Okay, people, we will be talking about liquid state. So liquid state में क्या होता है? जितने भी molecules होते हैं, उनके बीच में moderate space होता है, ठीक है? So in liquid state, the molecules have moderate space. यहाँ पे moderate space होती है, ठीक है? Moderate spacing होती है. Okay, so space between the particles is moderate. Moderate मतलब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे space की बात करें, ठीक है? तो solid में जो space है, ठीक है? Solid का space is far less than liquid का space between molecules, and liquid का space is far less than gas का space. Gas में सबसे ज़्यादा space होता है molecules के बीच में. The space between gas molecules is far more than the space between liquid molecules, and this is far more than the space between the solid molecules. ठीक है? Okay, so force of attraction between the particles is less. ठीक है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? Intermolecular force of attraction. तो आपका liquid का जो intermolecular force of attraction है, this is more than solid का जो intermolecular force of attraction. So we are talking about intermolecular force of attraction. So in gases, the intermolecular force of attraction is lesser than intermolecular force of attraction in liquids, and this is lesser than intermolecular force of attraction in solids. ठीक है? So solids have the highest amount of intermolecular force of attraction. Force of attraction between the particles is less. The kinetic energy of the particles is less. ठीक है? अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड, और बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन गैस, और यहाँ पे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स. सो दिस इज द हाईएस्ट. ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन गैस is higher than kinetic energy of particles in liquid, and this is higher than kinetic energy of particles in solid. ठीक है? In liquids, particles have a moderate distance between each other, so particles can move. तो थोड़ा सा movement possible है. Solids में कोई movement possible नहीं है. ठीक है? Solids में कोई movement possible नहीं है. In liquids, particles have moderate distance between them. तो आप देखोगे, जैसे समझ लो एक कोई liquid है, अगर इस liquid को आप heat करोगे तो आपको दिखेगा ऐसे बबल्स ऊपर जा रहे हैं. ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा स्पेस है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहे हैं. ठीक है? तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज देयर. मॉडरेट स्पेसिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. दिस इज अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज अवेलेबल इन लिक्विड्स इन बिटवीन विच द पार्टिकल्स कुड मूव. ठीक है? ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड क्या क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है? एक वॉल्यूम होता है बट इनडेफिनेट शेप. समझ लो, आपने एक लिक्विड लिया और ऐसे कंटेनर में इसको भरा. ठीक है?
उसी लिक्विड को जब आप ऐसे कंटेनर में भरते हो तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, है ना। उसी लिक्विड को जब आप ऐसे कंटेनर में भरते हो तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ लो यहाँ पे 20 मिलीलीटर लिक्विड लिया है, ठीक है, कोई लिक्विड लिया है, यहाँ पे भी कितना ही होगा, 20 ही मिलीलीटर होगा, वही सेम लिक्विड, यहाँ पे भी 20 ही मिलीलीटर है, तो इसका मतलब दे हैव द सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम इनका भाई साहब डेफिनेट है, ठीक है, वॉल्यूम इज डेफिनेट। व्हेन आई एम सेइंग दैट आई हैव टेकन 20 मिलीलीटर ऑफ अ लिक्विड, I am talking about a definite volume of the liquid. However, their shape is different. Shape इनका कंटेनर के हिसाब से। In this container, the 20 milliliter volume जो आपने लिक्विड का लिया है, it has got this shape. इस टाइप का शेप हो रहा है। इस वाले कंटेनर में इस 20 मिलीलीटर का इस टाइप का शेप हो रहा है। इस वाले कंटेनर में 20 मिलीलीटर का इस टाइप का शेप हो रहा है। So all of them have different shapes. So liquids have a definite volume. बट इनडेफिनेट शेप, इनका शेप इनडेफिनेट। आर वी क्लियर, ठीक है। सो दैट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब क्या होता है, जैसे कोई गैस है, देखो गैस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं। आपने कोई बलून लिया और उसको अगर पिचकार है तो पिचक करना थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन लिक्विड को आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू विद लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। ऑल लिक्विड्स फ्लो, आप अगर लिक्विड कहीं भी रखेंगे तो वो फ्लो करेगा। ऑल लिक्विड्स, दिस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, ठीक है। एक्चुअली जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है वो दोनों में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी। फ्लूइडिटी इज अ प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल टू बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। दिस फ्लूइडिटी इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड्स फ्लो, द फ्लो ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड्स फ्लो। आपके लिक्विड्स में कंटिन्यूअस फ्लो होगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम। ओके, अरेंज 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर। ओके, अरेंज 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। आपने 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स लिए हुए, ठीक है। प्लेस स्केल इन स्लांटिंग पोजीशन, आपने ऐसे स्केल्स डाल दिए, ठीक है। ओके, नाउ वी आर एक्चुअली डूइंग एन एक्टिविटी हियर। टेक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, अलग अलग आपने लिक्विड्स लिए हुए हैं, ठीक है। मिल्क, हनी, केरोसिन एंड वाटर, आपने अलग अलग लिक्विड्स लिया हुआ है। मिल्क, हनी, वी ऑल आर सीन दीज थिंग्स, केरोसिन और वाटर, 4 डिफरेंट टाइप के आपने लिक्विड्स लिए हुए हैं, ठीक है। वाटर हो गया आपका भाई साहब, हनी हो गया, मिल्क हो गया, केरोसिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो वाटर, देन वी हैव हनी, देन वी हैव मिल्क एंड देन वी हैव केरोसिन। सो वी आर टेकिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। ओके, नाउ अलाउ दीज लिक्विड्स टू फ्लो डाउन। आप भाई साहब इसको अलाउ कीजिए फ्लो डाउन करने के लिए ऐसे स्केल से, ठीक है। सो यू आर अलाउइंग इट टू बेसिकली फ्लो डाउन, ठीक है। सो भरेगा भाई साहब इसमें, है ना, ठीक है। इट इज गोइंग टू गेट फिल्ड। ओके, ऑब्जर्व द स्पीड एट विच दे कम डाउन। क्या सारे के सारे सेम स्पीड से नीचे आएंगे? कौन सा फटाक से नीचे उतरेगा? केरोसिन, ओके। और फिर मिल्क की वाटर। क्या आप देखोगे, जैसे आपने हनी देखा नहीं, अगर मैं ना यहाँ पे 1 बूंद पानी डाल दूं, ये भी इंक्लाइन प्लेन है, सरल से नीचे जाएगा। अगर मैं हनी डाल दूं तो धीरे 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 जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग लिक्विड्स की अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, केरोसिन comes down first, followed by water, then milk and then last honey, ठीक है। तो पहला आपका केरोसिन 60 से नीचे उतरेगा, उसके बाद भाई साहब आपका आएगा वाटर, उसके बाद मिल्क एंड देन हनी, ठीक है। सो ये हनी बहुत धीरे धीरे उतरेगा, ओके। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, घनत्व जो होता है, ठीक है। जितना ज्यादा घना होगा उतना ज्यादा उसका मूवमेंट जो है, फ्लूइडिटी उतनी कम होगी, ठीक है। सो फ्लूइडिटी उतनी ही कम होती जाएगी। फ्लूइडिटी इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। विस्कोसिटी इज व्हाट, घनत्व, ठीक है। तो आपका पैसा वैसा विस्कोसिटी की वजह से यहाँ पे कम होगा, ठीक है। सो लेस विस्कस लिक्विड्स फ्लोज इजीली,
तो इन चारों में सबसे लेस विस्कस लिक्विड कौन सा हो गया? केरोसिन। उसके बाद वाटर, उसके बाद मिल्क, उसके बाद हनी। ठीक है, हनी इज हैविंग द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंगस्ट दीज 4 लिक्विड्स। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। सो अभी हम बात करेंगे भाई साहब गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट में आपके पार्टिकल्स का कोई ठिकाना नहीं, दे आर जस्ट वॉन्डरिंग अवे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस मोशन है, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे कंटिन्यूअसली स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर के वॉल्स को कंटिन्यूअसली हिट करते रहते हैं। ठीक है, दे आर कंटिन्यूअसली हिटिंग। सो सिंस गैसियस पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट स्पेस बिटवीन देम, दे मूव फ्रीली। तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है और धातु वैसे मूव कर रहे हैं। मैंने अगर यहाँ पे, आप लास्ट सीट पे बैठे हैं समझो, और मैंने यार यहाँ पे अगर अगरबत्ती जलाई तो क्या आपको स्मेल मिलेगा? क्यों? क्योंकि ये गैसियस पार्टिकल्स फट रूम में फैल जाएंगे, दे आर मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। लेकिन अगर उस अगरबत्ती को मैंने यहाँ पे रखा है विदाउट जलाए तो क्या आपको स्मेल मिलेगा? नहीं। तो सॉलिड पार्टिकल का स्मेल उतना दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन गैसियस पार्टिकल का स्मेल फटाफट जाएगा, बिकॉज दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैसियस पार्टिकल्स बच्चा पार्टी आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये गैसियस पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस रैंडम मोशन होता है। ठीक है, ओके। सो दे मूव फ्रीली, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज हाईएस्ट। तो इन सब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इफ यू लुक एट इट इज द हाईएस्ट। ठीक है, मतलब ये ऐसे हो रहा है। वैसे सॉलिड्स में स्पेस है ही नहीं, लिक्विड्स में थोड़ा बहुत मॉडरेट स्पेस है, और गैसियस पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा स्पेस है। ठीक है, दे हैव द हाईएस्ट स्पेस। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज द लीस्ट। हार्डली कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड्स is more than intermolecular force of attraction between liquids, and this is more than the intermolecular force of attraction in solids, in gases. तो gases में intermolecular force of attraction almost negligible है ही नहीं। ठीक है, ओके। The kinetic energy of the particles is highest. Again हमने इसके पहले भी देखा, देखो kinetic energy of solids is lesser than kinetic energy of particles in liquids, and this is lesser than kinetic energy of particles in gases. ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, अभी हम बात करेंगे भाई साहब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का भाई साहब ना ही डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे समझ लो ये एक भाई साहब एक कंटेनर है और ये इसका वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? अगर समझ लो कोई गैस मैंने भर दिया, इसमें समझ लो हीलियम गैस भरा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसमें 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ हीलियम है, और एक टिन्नू सा कंटेनर लिया है मैंने, इसमें इस गैस को भर दिया है, क्योंकि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? समझ लो ये 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का है, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। लेकिन यही है कि मतलब जितना एयर हीलियम था वो यहाँ पे भर गया। ठीक है, तो ना ही इनका कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, गैसेस का नो डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप। क्या ये समझ में आता? ओके ओके। सो बेसिकली जैसे समझो अगर कहीं पे कुछ पक रहा होगा, अगर आपकी मम्मी खाना बना रही होगी घर पे, तो उसका स्मेल आप तक जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैसेस आर कंटिन्यूअसली मूविंग, देयर इज अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पिज्जा आप स्मेल करके बता सकते हैं। स्मेल ऑफ डिलीशियस पिज्जा कैन बी फेल्ट फ्रॉम डिस्टेंस ड्यू टू व्हाट पीपल? ड्यू टू गैसेस फ्लो। ठीक है, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। तो गैसेस विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, तो लिक्विड्स एंड गैसेस विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। इसीलिए गैसेस को और लिक्विड्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? दे आर नोन एज फ्लूइड्स। इनको अपन क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज फ्लूइड्स बिकॉज दे शो फ्लूइडिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, दे शो फ्लूइडिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। Because particles are continuously moving, gases move very fast and can be stopped by the solid walls of the container. Gases का movement बहुत fast होता है, ठीक है, and can be stopped by the solid walls of the container. इनके जो walls होते हैं वो उनको stop कर सकते हैं। ठीक है, they can be stopped. Okay, so आपका देखो जैसे gases are continuously moving, gases can be easily compressed and squeezed together. इनको आप आसानी से compress भी कर सकते हैं और squeeze भी कर सकते हैं। ठीक है, okay, so gases basically आपका इजीली कंप्रेस, जैसे सोडा बॉटल है देखो,
इसमें भाई साहब गैसेस इजीली कंप्रेस्ड है, ठीक है। ओके, तो अगर डिस्टिंग्विशिंग देखेंगे हम किसके किसके बीच में, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ऑल डिफ्यूज इन लिक्विड्स। तो सारे के सारे सॉलिड्स भी, लिक्विड्स भी और गैसेस भी आपके किस में डिफ्यूज हो सकते हैं, लिक्विड्स में, ठीक है। मतलब कैसा है, देखो आपने एक पानी लिया और इसमें नमक डाला, तो क्या ये वैसा खुल जाएगा? तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सॉलिड इज डिफ्यूजिंग इन द लिक्विड। इसके पहले हमने क्या देखा, पोटेशियम परमैंगनेट, उसको जैसे ही आपने वाटर में डाला पूरे वाटर का कलर पर्पल हो गया, दैट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। लिक्विड्स, इन लिक्विड्स को आप जानते ही, जैसे आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल और इसको पानी में मिलाया, वाटर, ठीक है, ओके, अल्कोहल को पानी में मिलाया तो विल इट मिक्स, हो जाएगा भाई साहब। तो लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स, और गैसेस लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। ये गैसेस भी आपके कार्बोनेटेड, जैसे आपका जो आप पेप्सी या जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, उसमें ऑलरेडी क्या है, उसमें भाई साहब आपका ये जो बोतल जब आप खोलते हैं ज़ुर्र से आवाज आता है कि नहीं, ठीक है, क्यों आता है भाई साहब, ये झुर्र से आवाज आएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है ताकि ये खराब ना हो, ठीक है, सो दैट इट डजंट गेट स्पॉइल्ड। जैसे आप इसको बोले झुर्र से निकलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में सॉलिड्स भी डिसॉल्व हो सकते हैं, लिक्विड्स भी डिसॉल्व हो सकते हैं और गैसेस भी डिसॉल्व हो सकते हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आर हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो जिस रेट से लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होता है उससे, मतलब देखो सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होगा और लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व होगा, लेकिन लिक्विड लिक्विड का डिसॉल्विंग जल्दी होगा, ना कि सॉलिड लिक्विड का डिसॉल्विंग। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। लिक्विड लिक्विड का डिसॉल्विंग, जैसे अगर आप समझ लो शक्कर लेते हैं, शुगर, और इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और इसका शुगर का सिरप बना लो, पूरा एकदम पीस कर उसको पूरा सिरप बना लो, शुगर सिरप अगर है आपका, ठीक है, शुगर सिरप, इसको वाटर में डालते हो, कौन जल्दी घुलेगा? दिस वन, ठीक है, ये जल्दी घुल जाए। चीनी की पूरी, जैसे रसगुल्ला खाते हो ना, तो रसगुल्ले के साथ जो रस होता है वो क्या होता है, व्हाट इज दैट? सिरप ना, शुगर सिरप ही तो है वो, चीनी का रस ही तो है वो, ठीक है। तो ये फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड is lesser than the rate of diffusion of liquid in liquid. क्या ये समझ में आ रहा है? Rate of diffusion of liquids are higher than that of solids. This is because in liquid state particles move freely. जैसे हमने देखा कि liquid state में particles का free movement ज़्यादा होता है and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. Solid state में particles में थोड़ा कम movement होगा. Are we clear on this one, people? Okay, we will end today's session now.